discuss general features of next phylum of kingdom Animalia, and that is Coelenterata. Members of Coelenterata phylum are aquatic in nature and majority of them are marine water forms. A few forms are or few species are present in freshwater also, but most of them are present in the sea water or the marine forms. So we can say both marine and freshwater forms are reported in Coelenterata phylum. Now let's discuss about their habit. There are number of organisms in this Coelenterata phyla which are sessile in nature or sedentary. What we mean by sessile or sedentary nature? Sessile means when an organism is fixed to the substratum, when the organism is not showing any type of locomotion, when it is not changing its place, such type of organism which is fixed, which is unable to move from one place to another place, such organism is known as sessile or sedentary. But a number of forms are present in Coelenterata which can change their place, means they show locomotion and they have free swimming or floating type of habit. So both sedentary or sessile and free swimming floating type of organisms are present in Coelenterata phylum. Now let's discuss the type of body plan. These organisms are having tissue level of organization. आपने पिछले वीडियो में पोरिफेरा मेंबर्स को पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा था कि the porifera members are primitive type of multicellular body forms or animals which have only cellular type of organization. What we mean by cellular level of organization, that they are just aggregates of cells. The cells are not organized to form the tissues. लेकिन Coelenterata members, these members are having tissue level of organization, is their advanced forms. एडवांस किससे है? पोरिफेरा से एडवांस है, क्योंकि इनमें जो सेल्स हैं वो सिंपल एग्रीगेट्स की फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो ऑर्गेनाइज हो गए हैं. दे गेट ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म टिश्यूज व्हिच आर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन. अगर हम बात करें कि इनमें सेल्स कितनी तरह की होती हैं, तो दे हैव ए वैरायटी ऑफ सेल्स. कोई मस्कुलर सेल है, नर्व सेल इज देयर, एंड फूड डाइजेशन में हेल्प करने वाले सेल्स हैं, ग्लैंड सेल्स होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए सेल्स होते हैं. सो ए वैरायटी ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस phylum, but yes, the cells are not isolated, they are organized in the form of tissues. Next feature is that they are diploblastic organisms. Diploblastic organisms, you all know that the organisms which possess two types of germ layers, ectoderm and endoderm. मतलब जो इनकी body है, that is derived from two types of layers, ectoderm and endoderm. That's why they are known as diploblastic type of organisms. But yes, they don't have any type of body cavity. They are acoelomate organisms. So what we have studied कि वो marine forms होते हैं या fresh water forms हो सकते हैं, sessile nature के हो सकते हैं, free floating हो सकते हैं, free swimming हो सकते हैं. They are diploblastic and acoelomate in nature and they have tissue level of organization. Now come to very unique feature of these Coelenterata members. यहाँ आप ये word Coelenterata सुन रहे हैं. This word is actually linked to a special cavity, body cavity of these coelenterates or these life forms. यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाया गया है. This is outline of an organism. सिर्फ आउटलाइन दिखाई गई है उसकी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, और इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस बॉडी के अंदर एक स्पेस दिखाई गई है. दिस इज द स्पेस. होलो एरिया इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. आप एक बैग को इमेजिन कर सकते हैं. एक बैग या सैक अंदर से बिल्कुल होलो होता है, उसी तरीके से ये बैग जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ये स्पेस दिखाई दे रही है. नाउ दिस स्पेस इज having an innermost lining which I have highlighted with red color. तो ये जो रेड कलर की हाईलाइटेड लेयर है, इस हाईलाइटेड लेयर का नाम गैस्ट्रोडर्मिस होता है.
गैस्ट्रोडर्मिस इज टाइप ऑफ लेयर विच विल हेल्प इन डाइजेशन। जब भी बाहर से फूड वाटर करंट्स की हेल्प से एंट्री करता है और इस बैग के अंदर यहाँ वो फूड एंटर कर जाता है, तो उस फूड को डाइजेशन करने में इस लाइनिंग का रोल रहता है। दिस गैस्ट्रोडर्मिस इज मेंट टू डाइजेस्ट द फूड एंड दिस कैविटी इज नोन एज गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन होना है, पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड विल टेक प्लेस इन दिस कैविटी विद द हेल्प ऑफ द सेल सिक्रीशन the cells which are present in this lining, they will secrete some enzyme, और वो जो फूड यहाँ पर पहुंचा है उस फूड का पार्शियल डाइजेशन इस कैविटी में होना है। इसीलिए इस कैविटी को हम कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड इट इज आल्सो नोन एज सिलेंड्रोम। ये जो सिलेंड्रोम वर्ड हमने यूज किया है, इसी से सिलेंड्रेटर वर्ड डिराइव किया गया। दैट मीन जितने भी मेंबर्स हैं, इन सब के पास एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, एक ऐसी कैविटी जिसमें फूड डाइजेस्ट होता है। सिलेंड्रेटा मेंबर्स हैविंग दिस सिलेंड्रोम। यहाँ पर इस कैविटी की जो ओपनिंग है, यहाँ पर आप देख रहे हो देयर इज ए वाइड ओपनिंग थ्रू व्हिच द फूड विल बी इजेस्टेड आउटसाइड। देखिए इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि ये सिर्फ टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ कोई ऑर्गन्स की तो हम बात नहीं कर सकते कि दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। यहाँ पर ये सिर्फ लाइनिंग है जो फूड को डाइजेस्ट करेगी। तो जैसे ही फूड इंजेस्ट हुआ, अंदर आता है फूड, उसे डाइजेस्ट करने के बाद जो फूड अनडाइजेस्टेड है वो इसी रास्ते से बाहर निकाल दिया जाएगा। मींस देयर इज अ सिंगल ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड इजेशन। इसीलिए इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम कह सकते हैं एक तरीके से इनकम्प्लीट है। और ये जो ओपनिंग है जिससे फूड इंजेस्ट किया जाता है या फूड को इजेस्ट किया जाता है, दिस ओपनिंग इज नोन एज हाइपोस्टोम। ओके, नाउ दिस वाज अबाउट द सिलेंड्रोम। अब बात करें इनके डाइजेशन के टाइप्स की। हमने अभी कहा कि जैसे ही फूड एंट्री करता है तो वो फूड इस सिलेंड्रोम में डाइजेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर फूड का सिर्फ पार्शियल डाइजेशन होता है। सिलेंड्रेटा की खासियत ये है कि इनमें दोनों तरह का डाइजेशन रिपोर्ट किया गया है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है सेल्स के बाहर डाइजेशन होना, और इंट्रासेलुलर का मतलब होता है सेल के अंदर डाइजेशन होना। ये जो रेड लाइनिंग है, एक बार इसको आप यहाँ देखिए, इसको एनलार्ज करके कुछ सेल्स को हमने दिखाया है। ये इस लाइनिंग को जब आप माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हो तो आप देखते हो दिस लाइनिंग इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। सबसे बाहर की जो लेयर है ये, दिस इज एक्चुअली द ब्लैक कलर लाइनिंग, जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है। उसके बाद सेंटर में मीजोग्लिया, ये वाली जो लेयर है, और इनर मोस्ट लाइनिंग, ये जो रेड कलर की लाइनिंग है वो ये वाली लाइनिंग है। दिस इज द लाइनिंग दैट आई हैव शोन हियर। ये जो लेयर है, इनकी बॉडी वॉल में 3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर की लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है, उसके बाद सेंटर में एक मीजोग्लिया नॉन सेलुलर लेयर होती है, और सबसे अंदर की तरफ जो हमें यहाँ पे रेड लाइनिंग से दिखाया है, दिस इनर मोस्ट रेड कलर्ड एरिया हियर इज एक्चुअली दिस लेयर, जिसका नाम गैस्ट्रोडर्मिस है। तो इस गैस्ट्रोडर्मिस में ऐसे सेल्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, और डाइजेशन में वो हेल्प कैसे करेंगे? बाय रिलीजिंग सम एंजाइम्स। तो अगर ये सेल्स, इफ दिस सेल्स दे आर गोइंग टू रिलीज देयर एंजाइम्स इन दिस कैविटी, यहाँ पर इस कैविटी में एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट किया जाता है, तो बहुत सारा पार्ट जो फूड बाहर से आया है, उस फूड का बहुत सारा पार्ट इस कैविटी में डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर फूड सेल्स में एंट्री नहीं करता है, सेल्स के बाहर है। सेल्स आर सीक्रेटिंग द एंजाइम्स, दे आर रिलीजिंग देयर सीक्रेशन इन दिस कैविटी। इस कैविटी में रिलीज कर रहे हैं और डाइजेशन यहाँ चल रहा है। तो सच टाइप ऑफ डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। लेकिन जैसे अभी कहा कि यहाँ पे फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड
पर अगर फूड है और ये अनडाइजेस्ट, अभी फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड विल एंटर इन दिस सेल्स। मान लीजिए डाइजेस्टिव सेल्स है, तो यहाँ पर ये सेल्स के अंदर फूड एंट्री कर जाता है, और फूड जब सेल्स में एंट्री करता है तो उसका बहुत सारा पार्ट सेल्स के अंदर डाइजेस्ट होता है। सच टाइप ऑफ डाइजेशन इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। हमने क्या सीखा कि जब फूड की एंट्री इस कैविटी में होती है तो डाइजेस्टिव जूस इस कैविटी में रिलीज होते हैं, कुछ पार्ट फूड का यहाँ पर डाइजेस्ट होगा जिसे आप एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कह रहे हैं, और जब वो फूड कुछ पार्ट उसका डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इसी लाइनिंग की सेल्स में एंट्री करता है, जहाँ पे सेल्स उसे फर्दर डाइजेस्ट करती हैं। क्योंकि फूड यहाँ इस कैविटी से पार्शियल डाइजेशन के बाद सेल्स में एंट्री कर रहा है, इसीलिए ऐसे डाइजेशन को हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। सो व्हाट वी हैव लर्न, बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन is present in cylindrids. Okay, so this was the cylindrome, gastrodermal cavity. Next is very unique feature of this cylindrical members is presence of nidoblast. यहाँ पे आप इसकी सबसे बाहर की लेयर को देखिए जिसको आप एपिडर्मिस कहते हैं, और इस एपिडर्मिस में एक स्पेशलाइज्ड सेल को यहाँ पे दिखाया गया है। दिस स्पेशलाइज्ड सेल इज नोन एज निडोब्लास्ट। अलग अलग वैरायटी की सेल्स है इनकी लेयर्स में, लेकिन ये यूनिक टाइप की सेल्स है जिनको आप निडोब्लास्ट कहते हैं, और इस निडोब्लास्ट को मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया है, एनलार्ज करके दिखाया है। आप देख रहे हैं कि इस निडोब्लास्ट में यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसको आप निडोसिल कहते हैं। निडोसिल के साथ साथ यहाँ पर एक ऑपरकुलम, एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर है, ऑपरकुलम, निडोसिल। फिर यहाँ पे आपको एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको आप थ्रेड ट्यूब कहते हैं, और इस थ्रेड ट्यूब का कनेक्शन यहाँ पर एक बैग जैसे स्ट्रक्चर से है जिसको आप निमेटोसिस्ट कहते हैं। तो ये एक सेल है जिसके पास कुछ पार्ट्स आपके साथ डिस्कस हुए हैं, निडोसिल, निमेटोसिस्ट, थ्रेड ट्यूब एंड ऑपरकुलम। अब ये सेल निडोब्लास्ट करती क्या है? दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ये निमेटोसिस्ट है, बैग जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ टॉक्सिन्स भरे होते हैं, एंड दिस टॉक्सिन कंटेनिंग निमेटोसिस्ट कैन एक्सप्लोड एंड द कंटेंट कैन बी रिलीज थ्रू दिस थ्रेड ट्यूब एंड कैन स्टिंग द जो भी प्रे इनके आसपास आता है ऑर्गेनिजम्स के, दे कैन स्टिंग देयर प्रे, they can paralyze their prey। तो ऐसे स्टिंगिंग सेल्स, स्टिंगिंग इसलिए कहा, ये जो निडोसिल है ये एक बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, जैसे कोई प्रे इसलिए इनकी इस बॉडी को टच करता है तो बॉडी को टच करने पे निडोसिल्स एक्टिवेट हो जाती है, या आप कह सकते हैं क्योंकि सेंसिटिव है तो दे कैन डिटेक्ट समथिंग इज अराउंड देयर बॉडी। तो उस निडोसिल की हेल्प से जैसे ही डिटेक्शन हुआ कि प्रे आसपास है, ये निडोब्लास्ट की निमेटोसिस्ट ब्लास्ट हो जाती है, एक्सप्लोड कर जाती है, और उसमें से जो केमिकल इसका है, टॉक्सिन जो है, वो इस थ्रेड के रास्ते उस प्रे के बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है। सो दिस निडोब्लास्ट आर हेल्पिंग द ऑर्गेनिज्म इन प्रोटेक्शन, डिफेंस में ये हेल्प करते हैं, इवन दे कैन ऑल्सो हेल्प इन एंकरेज ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। सॉरी। नेक्स्ट इज, और इसकी खास बात और है, निडोब्लास्ट की वजह से ही इनको हम एक और नाम दे सकते हैं, निडेरिया। Why we are calling them cylindrita? Because of presence of cylindrone. Why we are calling them nidaria? Because of presence of nidoblasts. Okay, these are the unique features of cylindrita. Now next feature is, you
हम जॉइड्स के नाम से जानते हैं। और ये जॉइड्स आपको दो तरह के दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये आपको ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का दिखाई दे रहा है, और इसमें ये जो एरिया दिखाया गया है ये टेंटिकल्स है। टेंटिकल्स है दिस निडोब्लास्ट सेल। इन्हीं टेंटिकल्स में निडोब्लास्ट सेल्स होती हैं इनकी लाइनिंग में, और इन्हीं से ये स्टिंग कर सकते हैं। दे कैन मूव देयर टेंटिकल्स। ये वाली फॉर्म जो है ससाइल है, हालांकि एक जगह पे फिक्स रहती है, इस एरिया से ये अपने आप को फिक्स जरूर कर लेती है, लेकिन इसके टेंटिकल्स मूव करते रहते हैं। और टेंटिकल्स पे स्टिंगिंग सेल्स यानी निडोब्लास्ट पाई जाती हैं। जैसे ही आसपास कोई प्रे आता है तो ये उसको स्टिंग कर लेते हैं, मतलब उसकी बॉडी में केमिकल्स को रिलीज कर देते हैं, उसको पैरालाइज कर देते हैं, और वो उनके लिए फूड में भी हेल्प कर सकता है। मीन द प्रे कैन एक्ट एज फूड फॉर देम, और अगर वो प्रेडेटर है तो उनसे ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट इन दिस टेंटिकल्स हेल्प देम इन प्रोटेक्शन और गेटिंग द फूड। लेकिन आप इसकी शेप देखिए, यहाँ पर ये एक सिलिंड्रिकल से बॉडी है, वेस लाइक बॉडी है, ये ससाइल भी है। तो ये जो लाइफ फॉर्म है, जॉइड है, इसको आप पोलिप कहते हैं, पोलिप। लेकिन बिल्कुल दूसरी तरफ मैंने एक और आउटलाइन बनाई है, आप देखें, इसकी शेप अम्ब्रेला जैसी है, और इसमें भी टेंटिकल्स हैं, लेकिन ये टेंटिकल्स हैंगिंग है। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाता है तो ये पोलिप फॉर्म है, और ये मेडूसा फॉर्म बोली जाती है, अम्ब्रेला शेप। मेडूसा एंड पोलिप, टू टाइप्स ऑफ जॉइड्स आर प्रेजेंट इन सिलेंट्रेट्स। पोलिप ससाइल यानी फिक्स होती है, मेडूसा फ्री स्विमिंग पाई जाती है। पोलिप में जो ये स्टॉक है, जिस बॉडी का जो नीचे वाला एरिया है, ये थोड़ा सा ज्यादा वाइड है और इलोंगेटेड है, लेकिन इसमें यही वाली जो स्टॉक है दिस हैज बीन रिड्यूस्ड। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस पोलिप फॉर्म को इन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। दोनों में सिमिलरिटीज क्या है आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर भी गैस्ट्रोडर्मिस दिखाई है, लेकिन इसी को आप इन्वर्ट करके ऐसे देखना चाहें तो यहाँ पर भी मैंने इसमें गैस्ट्रोडर्मिस को दिखाया है। ये इसका हाइपोस्टोम है, ये वाला एरिया, और यहाँ पे इसका हाइपोस्टोम ये है। ये फ्री लिविंग, अम्ब्रेला शेप एंड मेडूसा, ये ससाइल, सिलिंड्रिकल शेप एंड पोलिप। तो ये पोलिप फॉर्म है, ये मेडूसा फॉर्म है। अब सिलेंड्रेटा में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो सिर्फ पोलिप स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रा या सी एनिमल, ये सिर्फ इनमें यही वाली बॉडी फॉर्म पाई जाती है। लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो सिर्फ मेडूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ओरेलियो, या जिसको आप कॉमनली जेलीफिश के नाम से जानते हैं। लेकिन एक ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जैसे ओबेलिया। ओबेलिया में पोलिप फॉर्म भी रिपोर्ट की गई है। मींस द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया हैज बोथ द टाइप ऑफ जॉइड्स इन इट्स लाइफ साइकिल, पोलिप एंड मेडूसा। एक बार जब मेडूसा फॉर्म में होता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल गैमेट्स बनते हैं, फ्यूज करते हैं, जायगोट बनता है, और जायगोट बनने के बाद वो इस फॉर्म में डेवलप हो जाता है, मतलब मेडूसा से पोलिप में कन्वर्ट हो गया। और पोलिप फॉर्म में आने के बाद पोलिप्स में बर्ड्स लगते हैं, बर्डिंग से उन्होंने फिर से मेडूसा को बना लिया। तो इस तरीके से एक फॉर्म दूसरे फॉर्म के साथ अल्टरनेट करती है। देयर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वन फॉर्म इज फॉलोड बाय अनदर फॉर्म। ये एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाली स्टेज होती है ओबेलिया में, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली स्टेज होती है। ये ससाइल है, फिक्स है, ये मूवेबल फॉर्म है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में दोनों फॉर्म्स भी हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल आपको दिया ओबेलिया, एंड इफ एनी ऑर्गेनिज्म लाइक ओबेलिया possess such alternation of generation, this phenomena is known as मेटाजेनेसिस। क्लियर है, मेटाजेनेसिस। और बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं सिलेंड्रेटा में जो कई सारे जॉइड फॉर्म्स एग्जिबिट करते हैं, जैसे पोलिप और मेडूसा तो दो तो है ही जॉइड फॉर्म, ऐसे ब्लास्टो स्टाइल या ए नंबर ऑफ अदर फॉर्म्स आर आल्सो रिपोर्टेड। तो अगर एक से ज्यादा फॉर्म्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में रिपोर्ट की गई हैं
सच फिनोमेना इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे अगर ये सिर्फ दो फॉर्म्स हैं तो इस ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे डाइमॉर्फिक, ओनली टू फॉर्म्स आर रिपोर्टेड। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें दो से भी ज्यादा फॉर्म्स या जॉइंट्स रिपोर्ट किए गए हैं। सच फॉर्म्स आर नोन एज polymorphic forms or they exhibit polymorphism. Okay, next feature is that many of the members of these Coelenterata, they have skeleton made up of calcium carbonate and such forms sedentary forms fix होते हैं अपने सरफेस पे और उनका जो skeleton है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। such forms are known as corals। आपने कोरल रीफ्स के बारे में सुना होगा। कोरल रीफ्स आर द माउंट्स। अगर आप सी सरफेस पे देखें तो आपको सी सरफेस पर बिल्कुल बॉटम पर इन सिलेंट्रेट्स का जो एक्सोस्केलेटन है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ स्ट्रक्चर है, वो डिपोजिटेड फॉर्म में दिखता है और वो डिपोजिशन होने से बड़े बड़े माउंट्स बन जाते हैं जिन पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं। So coral reefs are actually large mounds, hard surfaces formed by deposition of skeleton of corals. Corals are type of Coelenterata members which possess calcium carbonate skeleton. So these are the features that we have studied in this phylum. Let's name a few members also, like Physalia, which is commonly known as Portuguese man of war, Adamsia। यहाँ पे एडेम्सिया ये जो आपको पॉलीफॉर्म दिखाई दे रही है, आपने ऐसा एक ऑर्गेनिज्म अपने 10th क्लास में देखा होगा, हाइड्रा। तो हाइड्रा इसी सिलेंट्रेटा फाइलम का ही मेंबर है और ऐसा ही पॉलीफॉर्म में एक और मेंबर होता है एडेम्सिया, विच इज कॉमनली नोन एज सी एनीमोन। एक है पेनेटुला विच इज नोन एज सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन एंड मैंड्राइना विच इज नोन एज ब्रेन कोरल। तो इनके शेप अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, उसके बेसिस पर हम इनके ये कॉमन नाम इनको असाइन किए गए हैं, लेकिन ये इनके साइंटिफिक नेम है और आपको दोनों साइंटिफिक नेम और इनके जो कॉमन नेम है वो आपको लर्न करने हैं। So these are the features of phylum Coelenterata and I hope this is clear to you.